تو تمہیں جو سب سے پہلی چیز جو تمہیں دکھائی دے، نظر آئے، تم اسے کھا لینا، نوش کر لینا۔ پیغمبر کو حکم دیا کہ جو کل سب سے پہلی چیز تمہیں نظر آئے تم اسے کھا لینا، نوش کر لینا۔ اور دوسرا حکم ہوا کہ میرے نبی جو دوسری چیز تمہیں نظر آئے تم اسے چھپا دینا۔ تیسرا حکم تھا کہ میرے نبی جو تیسری چیز تمہیں نظر آئے تم اسے مایوس مت کرنا۔ اور چوتھا حکم کیا تھا؟ میرے نبی جو چیز تم کو نظر آئے خبردار اس کے قریب مت رکنا، مت ٹھہرنا۔ یہ 4 حکم نبی کے لیے تھے کہ جو پہلا حکم تھا جو سب سے پہلی چیز تمہیں نظر آئے میرے نبی، میرے حبیب، تم اسے نوش کر لینا۔ اور دوسرا حکم کیا تھا؟ جو چیز تمہیں نظر آئے اسے چھپا لینا۔ تیسرا حکم کیا تھا؟ جو چیز تمہیں نظر آئے اسے مایوس مت کرنا۔ اور چوتھی بات کیا تھی؟ کہ جو چیز تمہیں نظر آئے خبردار اس کے قریب ٹھہرنا نہیں۔ یہ 4 حکم تھے نبی کو ملا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب نبی اپنے بیت الشرف سے نکلے تو نبی کی نگاہ جو سب سے پہلے پڑی وہ کہاں پڑی؟ ایک پہاڑ پہ پڑی۔ اور حکم کیا تھا؟ کھا لینا۔ نبی نے اس پہاڑ کی طرف دیکھا۔ اب ہمارے یہاں ایک چیز استعمال ہوتی ہے، جب کبھی کسی کو ستانا ہوتا ہے تو لوگ کسی سے کوئی مذاق کرتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی کیا صبح سے تمہیں کوئی اور نہیں ملا تھا؟ میں ہی نہیں ملا ہوں۔ اب پیغمبر یہ تو کہہ نہیں سکتے۔ انسانیت یہ کہہ رہی ہے کہ کھڑے رہو، آگے بڑھو نہیں۔ نبوت یہ کہہ رہی ہے کہ نبی کھڑے مت رہو، بڑھو۔ یہ مت دیکھو سامنے ہے کیا، یہ دیکھو حکم کس کا ہے۔ یہ مت دیکھو سامنے کیا ہے، یہ دیکھو کہ حکم کس کا ہے۔ تاریخ کہتی ہے نبی آہستہ آہستہ پہاڑ کی طرف بڑھے اور پہاڑ خود بخود چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور جیسے ہی نبی پہاڑ کے دامن میں پہنچے پہاڑ اتنا چھوٹا ہو گیا کہ ایک لقمے کے برابر ہو گیا۔ پیغمبر اسلام نے اس لقمے کو اٹھایا، حکم کیا تھا؟ اسے کھا لینا، نوش کر لینا۔ پیغمبر اسلام نے اس کو اٹھایا اور نوش کر لیا۔ اور یہ فرمایا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ میٹھا لقمہ آج تک نہیں کھایا۔ پہلی بات کیا تھی کہ میرے نبی جو سب سے پہلی چیز تمہیں نظر آئے تم اسے کھا جانا۔ اور نگاہ میں آئی کون سی بات؟ پہاڑ۔ دوسرا حکم کیا تھا؟ میرے نبی جو دوسری چیز تمہیں نظر آئے اسے چھپا دینا۔ نبی آگے بڑھے، کیا دیکھا؟ راستے میں تشت رکھا ہوا، اس میں ہیرے جواہرات بھرے ہوئے۔ اللہ نبوت۔ اب نبی سے ہٹ کے ہم اپنی بات کر لیں۔ جب ہم اس راستے پہ جاتے اور یہ دیکھیں کہ تشت میں ہیرے جواہرات بھرے ہوئے تو سب سے پہلے ہم دائیں دیکھتے، بائیں دیکھتے، آگے دیکھتے، پیچھے دیکھتے، کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا ہے، اور اس میں سے جتنا ہو سکتا ہے جیب میں بھر کے آگے بڑھ لیتے۔ لیکن نبی کو کیا حکم تھا؟ میرے نبی جو دوسری چیز تمہیں نظر آئے اسے چھپا دینا۔ نبی نے کہا مجھے حکم دیا
नबी आगे बढ़े, एक गड़ा खोदा, उसे छुपा दिया, आगे बढ़ गए। कुछ दूर आगे बढ़े थे, आहट महसूस हुई जैसे कुछ है पीछे। अब जो मुड़ के देखा, नबी ने तो देखा होता है बाहर रखा हुआ है। हुक्म क्या था? उसे छुपा देना। नबी ने क्या किया? उसे छुपा दिया। तीसरी चीज, मायूस मत करना। नबी आगे चले जा रहे हैं, क्या देखा? एक बाज है जो एक परिंदे का पीछा कर रहा है, और उस परिंदे ने आकर के नबी की आस्तीन में पनाह ले ली। हुक्म क्या था? मायूस न करना। और नबी ने अपनी रान का गोश्त काट करके उसे दे दिया। हुक्म था अल्लाह का, मायूस मत करना। नबी ने दिया, वो चला गया। 3 हुक्म। चौथा हुक्म क्या था? खबरदार उसके करीब रुकना नहीं, ठहरना नहीं। नबी आगे पहुंचे, क्या देखा? एक लाशा पड़ा हुआ है, मुर्दार पड़ा हुआ है, एक मैयत पड़ी हुई है। हुक्म क्या था? मेरे नबी उसके करीब रुकना नहीं। ये 4 हुक्म दिए गए थे किसे? पैगंबर को। पैगंबर ने चारों हुक्म परवरदिगार पे अमल किया, और अमल करने के बाद एक मर्तबा आवाज दी, मेरे माबूद तूने जो हुक्म दिए मैंने उसको पूरा किया, मगर ए परवरदिगार इतना तो बता दे कि आखिर इसके पीछे कोई राज भी है, आखिर इन चीजों के पीछे कोई सबक है, कोई दर्स है इंसानियत के लिए, ताकि तेरा पैगाम इंसानों तक पहुंचा सकूं। आवाज़े कुदरत आई, मेरे नबी जो मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि जो सबसे पहली चीज नजर आए तुम उसे खा लेना, और जो तुम घर से निकले तो जो सबसे पहली चीज तुम्हें नजर आई वो एक पहाड़, मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि उसे खा लेना। तुम पहाड़ की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए, पहाड़ खुद ब खुद छोटा होता चला गया और एक लुकमे के बराबर पहुंचा, और तुमने उसे उठा के नोश कर लिया। ए मेरे नबी, इंसानियत के लिए सबक ये है, इंसानियत के लिए दर्स ये है कि जो बज़ाहिर तुम्हें सामने पहाड़ दिखाई दिया था, ए नबी इंसानों को बता देना कि ये पहाड़ नहीं था, ये बल्कि गुस्सा था। जब इंसान गुस्से में आता है तो उसका गुस्सा पहाड़ के बराबर हो जाता है, और जब इंसान गुस्से पे काबू पा लेता है तो मीठे लुकमे के बराबर हो जाया करता है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। वाह, खुद सोचें कि जब इंसान को गुस्सा आता है तो काबू से बाहर हो जाता है इंसान। इसीलिए कहा गया कि अगर कभी किसी को गुस्सा है, बैठा हो तो खड़ा हो जाए, उसका गुस्सा कम हो जाएगा, और अगर बैठा है तो खड़ा है तो बैठ जाए, उसका गुस्सा खुद ब खुद कम हो जाएगा। लिहाजा ये हमने देखा कि जब वाक़ई मसलन खुदा न करदा किसी 2 दोस्त में या 2 भाई में या मसलन किसी 2 पड़ोसी में झगड़ा होता है तो उसका गुस्सा जो है आसमान के बराबर हो जाता है, पहाड़ के बराबर हो जाता है। लेकिन जब यही अफराद गुस्से पे काबू पा लेते हैं तो यही 2 बिछड़े हुए अफराद आपस में मिल जाते हैं जब गुस्से पे काबू पा लेते हैं। लिहाजा जब गुस्से पे काबू पा लो तो ये मीठे लुकमे के बराबर हो जाता है। लिहाजा इंसानियत को ये सबक था कि देखो गुस्से पे अपने काबू पा लो, खुद ब खुद सब खत्म हो जाएगा। दूसरा मसला क्या था? नबी जो तुम्हें दूसरी चीज नजर आए उसे छुपा देना। नबी आगे बढ़े, क्या देखा रास्ते में? एक तश्त है, उसमें क्या रखे हैं? हीरे जवाहरात वगैरह भरे हुए। हुक्म क्या था मेरे नबी?
छुपा देना। नबी आगे बढ़े, एक गड्ढा खोदा, उसे दफनाया, आगे बढ़ गए। जैसे चंद कदम आगे पहुंचे, महसूस हुआ कोई आवाज आई। अब जो मुड़ के देखा तो देखा कि हीरे जवाहरात जो रखे हुए थे वो बाहर आ गए। हुक्म क्या था? मेरे नबी छुपा देना। तो नबी ने तो अपना काम कर दिया, काम करके आगे बढ़ गए। अब पूछा माबूद, ए मेरे परवरदिगार, इंसानियत के लिए कोई सबक है? कहा हां मेरे नबी, मेरे बंदों तक मेरा ये पैगाम पहुंचा देना कि जो तुमने तश्त में हीरे और जवाहरात देखे थे, ये हीरे और जवाहरात नहीं थे। ए मेरे नबी, इंसानियत को ये सबक दे दो, मेरे बंदों तक ये मेरा पैगाम पहुंचा दो कि जो तुमने तश्त में हीरे और जवाहरात देखे हैं, ये हीरे और जवाहरात नहीं है, ये बंदों की हुई नेकियां हैं। मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि नेकियों को छुपा दो, और नेकियों को जितना तुम छुपाते जाओगे, नेकियों का जाहिर करना मेरा काम है। तुम नेकियां करते चले जाओ, छुपा छुपा के करते चले जाओ, नेकियों का जाहिर करना मेरा काम है। तुम इसकी फिक्र मत करो कि कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। तुम सिर्फ इसकी फिक्र करो कि वो कबूल कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसलिए कि अगर तुमने बंदों के लिए किया है तो कयामत के दिन मुझसे मत मांगना, महबूब मैंने 10 पाउंड दिए थे फला मजलिस में, मालिक मैंने 2 रुपए फला जगह दिया था। तो जिसको दिया था, जिसको दिखा रहे थे, उससे जाके लो, मुझसे क्या दे लो। लिहाजा मेरे बंदो याद रख लेना कि नेकियां जितनी जी चाहे करो, जितना जी चाहे करो, मगर छुपा छुपा करके किसी पे जाहिर मत कर देना। तुम छुपा छुपा के कर जाहिर कर दो, छुपा छुपा के करते चले जाओ। जाहिर करना मेरा काम है, लोगों को बताना मेरा काम है, दुनिया पे आश्कार कर देना मेरा काम है। तुम इसकी फिक्र मत करो कौन देख रहा है या नहीं देख रहा है। मैं तो जिसके लिए तुम कर रहे हो मैं देख रहा हूं, बाकी काम मेरा है। तुम्हारा काम नेकी करना, छुपा छुपा के करना, बंदों तक पैगाम पहुंचाना मेरा काम है। लिहाजा ये सबक था इंसानियत के लिए। वरना हमारे यहाँ तो बहुत से मकामात थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान में यही होता है, आदमी पैसा देता है और ये सोच तक देगा 2 ही रुपए, लेकिन ये सोचेगा कि यहां से वहां तक जितना मजमा है सब देख ले और सुन ले कि मैंने 2 रुपए दिया है। बेशक दिया है, कोई बात नहीं, अगर अल्लाह के लिए दिया है हम उसी से दे दो, अजर देने वाला वही है। और अगर तुमने दिखा के दिया कि लोग सुन ले, लोगों को दिखाने के लिए, तो फिर लोगों ही चाहिए ले लेना, उससे क्या मांगने जाओगे कि मालिक मैंने 2 रुपए दिया था फला मस्जिद इमाम बाड़ी को। लिहाजा तुम इसकी फिक्र न करो, अल्लाह की बारगाह में जो तुम देना चाहते हो दे दो, तुम खामोशी से दे दो, जाहिर कर देना मेरा काम है। तुम इसकी फिक्र मत करो कौन देख रहा है, जिसकी राह में दिया है, जिसके खातिर दिया है वो देख रहा है। अजर मैं देने वाला हूं, क़यामत के दिन मैं ही तुम्हें अजर दूंगा, ये बंदे तुम्हें अजर नहीं देने वाले। तीसरा हुक्म क्या था? मेरे नबी उसे मायूस मत करना। नबी ने क्या देखा? एक बाज है जो एक परिंदे का शिकार कर रहा है। नबी ने अपनी आस्तीन में उसको पनाह दे दी और अपनी रान का गोश्त निकाल करके उस बाज को दे दिया। मेरे माबूद ए परवरदिगार, इंसानियत के लिए इसमें क्या सबक है? आवाज आई, मेरे नबी इंसानियत को ये सबक दे दो, इंसान को ये सबक दे दो कि अगर कभी कल कोई बात हो जाए और अगर कोई भी इंसान तुम्हारे दरवाजे पे जान की भीख मांगने आए तो ये मत देखना कि किस मजहब का है, ये देखना कि इंसान है या नहीं है। कोई भी इंसान हो, आज उसकी जान तुम बचा लो, कल जब तुम पे वक्त पड़ेगा तो तुम्हारी जान को बचाना मेरी जिम्मेदारी है। इसकी फिक्र मत करना कि हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, ये देखो इंसान है या नहीं है। लिहाजा अगर कभी कोई ऐसी बात आए
تمہارے دروازے پہ کوئی آئے جان کی بھیک مانگنے کے لیے کہ میری حفاظت کر لو، مجھے بچا لو، یہ مت دیکھنا شیعہ ہے یا سنی ہے یا کیا ہے، کچھ نہیں ہے، یہ دیکھو مسلمان ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھو انسان ہے یا نہیں ہے، اگر انسان ہے تو اس کی جان تم بچا لو، کل اگر کوئی بات ہوگی تو پروردگار تمہاری جان بچائے۔ اور اس کے بعد چوتھا حکم کیا تھا؟ میرے نبی جو چیز تمہیں نظر آئے خبردار اس کے قریب ٹھہرنا نہیں۔ نبی ادھر سے بڑھے تو نبی نے کیا دیکھا؟ ایک لاشا پڑا ہوا ہے، مردار پڑا ہوا ہے، جنازہ پڑا ہوا ہے۔ حکم کیا تھا؟ میرے نبی خبردار اس کے قریب ٹھہرنا نہیں۔ پوچھا مالک انسانیت کے لیے کوئی سبق ہے؟ انسانیت کے لیے کوئی درس ہے؟ آواز قدرت آئی، میرے نبی جو تم یہ سامنے ایک لاشا دیکھ رہے ہو، مردار دیکھ رہے ہو، یہ مردار نہیں ہے، یہ لاشا نہیں ہے، اے میرے نبی انسانیت کو سبق دے دو کہ یہ لاشا